हेलो और गुड इवनिंग वंस अगेन। तो आज हम लोग 2007 का सेलिब्रेशन करने वाले हैं। आज से 13 साल पहले ये वर्ल्ड कप फाइनल खेला गया था। इसी के लिए हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं राहुल धरनगांवकर। यस, राहुल दादा इज ऑन। क्लियर क्लियर। तो आज से 13 साल पहले एक हिस्टोरिक फाइनल खेला गया था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अभी आज पूरा हर चीज़ यही बताने वाले हैं, हम तो आज सुनने वाले हैं। चलो। Okay, so thank you, Ajinkya, for inviting me again on this another episode or session of Sports Kshetra. Today's session is on World T20 basically. यस। So 24 September 2007, I think no Indian or probably no cricket diehard fan can forget this day when India beat Pakistan by 5 runs at Johannesburg and करेक्ट। lifted the first ever or the only so far World T20 under the able captaincy of महेंद्र सिंह धोनी। ओके, तो उसी के बारे में मैंने कुछ जस्ट क्विक मेरे मतलब some stats which were there in my mind I have just taken over there ओके। and I can share। मतलब जो मुझे याद आ रहे थे quickly just before 10-15 minutes I thought to write down on a plain paper and share something। Apart from that, you can feel free to आस्क एनी क्वेश्चन। yes, ask any question or something interesting which comes to your mind। किसके भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस ले पाए। या तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं थोड़ा वर्ल्ड T20 से पहले। जो T20 का जो स्टार्ट है दैट वाज इन वे बैक इन 2003 करेक्ट। इन इंग्लैंड। ओके, इन वन ऑफ द काउंटी चैंपियनशिप। तो जून 2003 में आई थिंक केंट और अनदर काउंटी टीम है उनके साथ में एक T20 मैच खेला गया आपस में एंड पोस्ट दैट इट वाज अ बर्थ और आई वुड से अ स्टार्ट ऑफ T20 लीग। बट द फर्स्ट एवर T20 इंटरनेशनल was played between Australia and New Zealand at Adelaide Oval in Australia करेक्ट। in January 2005। ओके। okay, which Australia won। और उसमें रिकी पॉन्टिंग ने डेब्यू मैच था दोनों टीम के लिए, डेब्यू इंटरनेशनल मैच। रिकी पॉन्टिंग एज अ कैप्टन एंड एज अ प्लेयर स्कोर्ड द देन हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर ऑफ 98 रन। ओके। ओके, तो ये पहली इंटरनेशनल मैच थी T20 की ऑफिशियली। यस, जैन यस, ऑफिशियल T20 मैच, T20 इंटरनेशनल बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एट एडिलेड ओवल। ओके। ओके, उसके बाद में दो ढाई साल के बाद में सितंबर 2007 में ICC T20 in South Africa was organized and in fact there is some background I would like to say। After a very dismal and very sad performance of Indian team in the World Cup in 2007 in ODI करेक्ट, in अगेंस्ट West बांग्लादेश। Indies, in no no in West Indies, ओके ओके ओके। ODI World Cup of 2007, same year, where India was beaten very bad by Sri Lanka and Bangladesh, and we were knocked out same year in the league itself। many of the senior players like Sachin, Dravid, Lakshman, and even Ganguly, uh, they opted out of this T20 World Cup, and they thought this is something, this is just for youngsters and not it's not going to uh, take a shape going in future। but ऐसा करेक्ट। हुआ नहीं। then the captaincy was handed over to Dhoni and whatever happened rest is history। करेक्ट। okay, so if I mean if you want I can present some of
stats which is there from my mind quickly. Otherwise, I am open to Yes, yes, some yes, yes. questions. You can share your stats. Okay. So I'll just start with the winners. 2007 India, 2009 Pakistan, 2010 England, 2012 West Indies, 2014 Sri Lanka, 2016 West Indies. Okay. Correct. Now somebody will ask, okay, we know this. What is new? The point here, I observed one stats over here. In 2009, England hosted the World Cup, which Pakistan won. Next year, England won the World Cup. Which was hosted by? In 2009, England hosted the World Cup. Okay. In 2010, England won the World Cup. In 2010, West Indies hosted the World Cup. In 2012, West Indies won the World Cup. In 2012, Sri Lanka hosted the World Cup. In 2014, Sri Lanka won the World Cup. Okay, but ये चेन 2016 में ब्रेक हुआ क्योंकि 2014 वर्ल्ड कप वाज होस्टेड बाय बांग्लादेश but 2016 winner was West Indies. Correct. Okay. Another thing, when India won the 2007 World Cup, T20 World Cup, and in 2011 when they won 2011 ODI World Cup, so India became the first team to win 60 over World Cup in 1983, Correct. 20 over World Cup in 2007, 2007. and 50 over World Cup in 2011. 2011. Okay. Now the only country which can match this statistics is West Indies. They have won 1975, 1979, 60 over World Cup. They Correct. have won 20 over World Cups. And Correct. if they win in future 50 over World Cup, then they can match this stat. Correct. Okay, so ये बहुत अलग अलग स्टैट्स बताए। ये कोई भी व्यूअर्स को शायद से बहुत कम व्यूअर्स को पता होंगे, तो ये अच्छे स्टैट्स बताए आपने। अगर मोस्ट रन्स की बात करेंगे तो T20 वर्ल्ड कप में अभी तक हाईएस्ट रन स्कोरर है जयवर्धने 1016 रन। द नेक्स्ट इज गेल। मोस्ट विकेट्स अभी तक लिए है अफरीदी ने 39 विकेट्स एंड द नेक्स्ट इज मलिंगा विथ 38। करेक्ट। एंड डू यू नो do you know how many teams have played so far the T20 World T20? No. Okay. Including the associate teams, there are 19 teams. Even like Oman, Netherlands, Kenya. Kenya, which are not full member of ICC, full-time member. Okay. उसके बाद में सबसे पहला जो T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड T20 में मैच हुआ था बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज, उसमें क्रिस गेल ने 100 मेरे ख्याल से 117 रन ब्लास्ट किए थे वाइल चेसिंग। ओके, 117 रन चेस गेल ने स्कोर किए थे and that was the first century in World T20. ओके। आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है, ठीक है। आवाज ब्रेक हो रहा है। Am I audible clearly? Yes, yes, now. अभी ठीक है। Okay. Speaking about highest team total, Sri Lanka has made 260 runs while playing against Kenya in September 2007, the first World T20. And in the last T20, which was played in March 2016, England scored 230 runs at the loss of 8 wickets versus South Africa.
ओके, तो ये स्टैट्स तो है मेरे पास, आप बताइए इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस और कुछ अगर है तो somebody अभी थोड़ा yours also. ये T20 वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि क्या स्पेशल मोमेंट्स रहे इंडिया के T20 वर्ल्ड कप में। जैसे युवराज के 6 छक्के रहे, फिर MS धोनी की कैप्टेंसी रही है, तो ऐसे कुछ हाइलाइट्स पे आप बात करना चाहेंगे? See, definitely. I mean, 2007 का जो यूनिट है, winning unit of World T20 from Indian side, I would say everybody was a match winner. Not just करेक्ट, Yuvraj, not just Dhoni. It was करेक्ट, Gambhir who contributed. It was Irfan Pathan. It was Yusuf Pathan who made his debut in the final. Okay, करेक्ट, because Sehwag was injured. इंजर्ड, यस, Yeah, so Yusuf Pathan is the only player so far to make ODI or T20 international debut in the tournament final. करेक्ट, Okay, तो गौतम गंभीर, इरफान पठान, RP Singh, Harbhajan, everybody contributed, in bits and pieces from their side. करेक्ट, Or definitely Yuvraj was as his peak in 2007. करेक्ट, एंड बहुत सारे लोगों ने जो क्वेश्चन रेज किए थे कि सीनियर लोग, सीनियर प्लेयर्स लाइक सचिन, ड्रॉप, द्रविड़, लक्ष्मण और इवन गांगुली, दोज वेर नॉट देयर इन 2007, तो धोनी को कैप्टनसी देना वाज अ वेरी बैड आइडिया, ये लोगों का उस वक्त का मानना था. करेक्ट, But he proved it wrong absolutely, saying that T20 is altogether a different game compared to Test and One Day International. तो आपको 3 घंटे में रिजल्ट देना है एंड it's something different. Even though every match, every over, every ball is a high pressure game, but करेक्ट, धोनी ने प्रूव किया कि you have to keep your cool and that is how you can win the game. करेक्ट, तो इंडिया की अगर बात करेंगे तो 2007 तो डेफिनेटली हम विनर थे. उसके बाद में 2014 में वी रीच द फाइनल इन बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका. बट बिल्कुल, वो मैच का भी मुझे फाइनल का एक हाईलाइट है कि इट्स सैड दैट युवराज कुडंट परफॉर्म इन फाइनल एंड इन 21 balls he just hit I think 14 or 10 runs if I remember correctly. And उस वक्त कोहली, he was at his peak again. He was blasting Sri Lankan bowlers, but somehow we couldn't make a very high total or high target for Sri Lanka. And with the help of Sangakkara and Jayawardene, they chased it. करेक्ट, उसके बाद में भी 2016 में इंडिया को एक चांस मिला था where we Lost to West performed very Indies. well till we performed till semi-final, and even in semi-final we made 190 plus runs I think करेक्ट, in at Mumbai, Wankhede. वानखेड़े, And the strategy was to control somehow Terence Sammy or Chris Gayle. But somebody like Lendl Simmons, he came out of syllabus and he just blasted all the bowlers. और वो एक करेक्ट, डिसअपॉइंटिंग एंड था हमारे वर्ल्ड कप बिल्कुल. कैंपेन का. और 2007 की जो वर्ल्ड कप की हम बात करेंगे तो उसमें पहले ही मैच से इतना एक्साइटमेंट आ गया था लोगों के बीच, क्योंकि पहली मैच ऐसी हुई थी, मतलब इंडिया की पहली मैच एक्चुअली स्कॉटलैंड के साथ थी, तो वो बारिश के इंडिया वजह की से पहली मैच वॉश आउट हो गया था. बिल्कुल उसके बाद में पाकिस्तान दूसरा के मैच साथ जो थी था, हमारी, हाँ दूसरी मैच पाकिस्तान के साथ थी, वो जो कि बहुत बॉल आउट मेमोरेबल में हम मैच हुई, जीते. बॉल आउट में जीते थे. हाँ, एंड that was the only second time ball out was used. The first time करेक्ट, ball out was used was in 2005 when New Zealand and West Indies played. Okay, तो इंडिया और पाकिस्तान का सितंबर 2007 का जो बॉल आउट था, that was the only second time. And if you look at that match, the last wicket from Pakistan side was Misbah-ul-Haq. He was out and the match was tied. And Correct. final maybe the last match, the final match which India won, the last wicket was Misbah-ul-Haq. तो मिसबा भी मतलब उस वक्त T20 के एक बहुत बड़े प्लेयर थे. बिल्कुल, And पाकिस्तान के बहुत डिपेंडेबल प्लेयर थे वो. यस, बहुत बड़े प्लेयर थे और उनकी भरोसे पे
यू नो पाकिस्तान भी 2007 में टॉप 4 में था, 2009 में टॉप 4 में था, और बिल्कुल इनफैक्ट 2010 में भी टॉप 4 में था। बिल्कुल 2010 की अगर बात करेंगे तो मुझे याद है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल हुआ था, एंड पाकिस्तान made some handsome score of around 190 plus, if I correctly remember. And Michael Hussey came from nowhere and करेक्ट he blasted the in-form Pakistan bowler Saeed Ajmal around 18 plus runs in the last over, and they chased down the target successfully. Otherwise, Pakistan फिर से 2010 में भी फाइनल में जाने वाला था। बिल्कुल तो वो एक पॉइंट है। बिल्कुल। और ये T20s में कुछ कुछ मैचेस ऐसी रही है, जैसे साउथ अफ्रीका वाली मैच, तो उसमें हमारे जब जितना मुझे याद है 4 विकेट्स वगैरह गिर गए थे इंडिया के, और वो मैच थोड़ी मुश्किल लग रही थी इंडिया के लिए, लेकिन वो मैच में कम टोटल डिफेंड करते हुए इंडिया मैच जीता था। वो एक उसमें दिनेश कार्तिक वाली कैच मुझे अभी भी याद है, जो ग्रैम स्मिथ की पकड़ी थी दिनेश कार्तिक ने स्लिप में, हाँ हाँ, स्लिप या फिर सेकंड स्लिप में था। करेक्ट करेक्ट। तो ऐसे कुछ मेमोरेबल्स मोमेंट्स रहे हैं वो मैच के, जो अभी भी याद आते हैं उस वर्ल्ड कप के से। 2009 एक मुझे मैच याद है, 2009 वर्ल्ड T20 विच वाज प्लेड इन इंग्लैंड। Netherlands, I think if I'm not mistaken, Netherlands beat host England at Lords. Okay, हम्म and it was a complete upset. Nobody expected that Netherlands would win against England. हम्म तो वो एक क्रूशल मैच हुआ था 2009 की बात करें तो। करेक्ट करेक्ट। ओके, और most catches, I just thought I should put from the start forum. AB de Villiers has taken 23 catches as a fielder, and Guptill has taken so far 15 catches. और अगर dismissals by wicket keeper की बात करें तो धोनी has taken 32 wickets and Kamran Akmal 30 dismissal. इन वर्ल्ड कप T20 राइट। Yes, only World T20. करेक्ट बिल्कुल। ये बिल्कुल बहुत अच्छे स्टैट्स है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होंगे ये, जो अभी हमारे साथ 7 लोग जुड़े, तो ट्राई करते हैं कि कुछ इनमें से क्वेश्चंस ले पाए हम। हम्म। और अगर और एक पॉइंट है कि इस साल अगर ये पैंडेमिक की सिचुएशन नहीं होती वर्ल्ड वाइड, तो T20 वर्ल्ड कप जो 2020 का है ऑस्ट्रेलिया में खेला जाने वाला था अभी अक्टूबर में, तो दैट वुड हैव बीन अ परफेक्ट इवेंट ऑफ वर्ल्ड T20 played in year 2020 which comprises of 20 overs. करेक्ट तो वो और एक अच्छा स्टैट्स निकल गया था, बट बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली वो आई थिंक अभी नेक्स्ट साल पोस्टपोन हो गया। तो अभी क्वेश्चंस क्वेश्चंस भेजो, क्वेश्चंस लेते हैं सबके। अच्छा, मुझे एक याद आ रहा था बॉल आउट से, तो बॉल आउट में इंडिया और हेलो, पाकिस्तान के, हेलो आवाज आ रहा है? ये वॉइस इज हेलो, ब्रेकिंग, आई डिडंट गेट। एक सेकेंड। हेलो 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 हेलो। हेलो, या अभी आ रहा या है? या इट्स ओके। ओके। तो बॉल आउट से मुझे एक याद आ रहा है कि जब धोनी ने सहवाग, उथप्पा और हरभजन को बॉल दिया था, तो बहुत सारे लोग सरप्राइज थे, क्योंकि यूजुअली ऐसा माना जाता है कि फास्ट बॉलर्स स्टंप्स को ज़्यादा
मतलब एक्यूरेसी से मार पाएंगे, क्योंकि उनको जब वो प्रैक्टिस करते हैं नेट्स में तो उनको ज़्यादा प्रैक्टिस होती है बॉल आउट में, है ना। बिल्कुल। तो ओके, पाकिस्तान, उसके लेकिन उसमें पाकिस्तान उसके में, हाँ उसके पीछे भी बॉल आउट का जो एक स्ट्रेटेजी था, तो उसमें वर्ल्ड T20 में तो वो फर्स्ट टाइम था, एंड मेनी पीपल थॉट, आई स्टिल रिमेम्बर इवन commentators that from both sides at least one fast bowler should be there so that करेक्ट। using Yorker maybe a ball out can be achieved. But both captains, that is Shoaib Malik from Pakistan and Dhoni from India, they had different thoughts. So both used, I would say, kind of spinners or the bowlers who had short length, short run up rather. अगर आप उमर गुल की भी बात करें, उमर गुल गुल, ने भी बॉल आउट किया था, तो ही कट ऑफ हिज रन अप सो दैट ही कैन करेक्ट। टारगेट टू द स्टंप। और हमारी तरफ से सबसे पहले सहवाग ने हिट किया, उसके बाद में हरभजन ने हिट किया, और उसके बाद में उत्तपा ने, रॉबिन उत्तपा ने। तो करेक्ट। बेसिकली यही रीजन है कि बॉल आउट एक ऑलटुगेदर न्यू फेनोमेना था क्रिकेट में, एंड नोबडी न्यू हाउ टू गो फॉर इट। तो ये एकदम से बॉल आउट चले कैसे गए एकदम, मतलब उसके जगह जो ये अभी आया है सुपर ओवर, सुपर तो ओवर, इसने कैसे रिप्लेस किया। उसका रीजन ये है कि अगर आप बॉल आउट देखोगे, अजिंक्य, विच वाज डिजाइंड एट दैट टाइम वेरी मच सिमिलर टू पेनल्टी शूट आउट फ्रॉम फुटबॉल। करेक्ट। बट करेक्ट। फुटबॉल में क्या होता है कि अनलाइक क्रिकेट यू डोंट हैव अ बैट्समैन और बॉलर। क्रिकेट की अगर आप बात करोगे तो उसमें बैट्समैन है, बॉलर है, ओके। करेक्ट। तो बॉल आउट जब यूज हुआ तो उसमें सिर्फ बॉलर ही थे, एंड द एम वाज टू हिट टू द स्टंप्स। करेक्ट। बट वेयर इज बैटिंग परफॉर्मेंस, आपके बैट्समैन जो भी है, करेक्ट। करेक्ट। दोज वर नॉट यूज्ड, वो पोटेंशियल यूज नहीं हुआ था। बिल्कुल। तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ इस पे, बहुत सारे थॉट प्रोसेस आए कि एक एक आई रिमेम्बर आफ्टर दिस बॉल आउट एंड क्रिटिसिज्म, फ्यू सजेशंस वेर मेड टू आईसीसी लाइक कि 5 5 ओवर्स का एक मैच खेलना चाहिए टू ब्रेक द टाई, और या तो अदरवाइज वन ऑफ द सजेशन वाज टू रिपीट द बॉल आउट, ओके। that Pakistan will bowl 2 times, India will bowl 2 times, something like that. Team A will bowl 2 times, Team B will bowl 2 times. बट ये सबको स्क्रैप करके आईसीसी ने एक सजेशन लिया कि लेट अस प्लान 1 ओवर ईच एंड कॉल इट अ सुपर ओवर, एंड बेस्ड ऑन मैक्सिमम 2 विकेट्स फेल, द इनिंग कैन बी डिक्लेयर्ड। ओके। हाँ, तो एक्चुअली बॉल आउट से बेटर ये है, क्योंकि इसमें दोनों भी बॉलर्स और फील्डर और बैट्समैन तीनों का कंट्रीब्यूशन इसमें आता है। तो यस, सुपर ओवर एक अच्छा ऑप्शन है अभी के लिए, और जिसमें हम यस, अभी देख भी चुके हैं आईपीएल में इतने मैचेस सुपर ओवर से और ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग यस। भी होते जा रहे हैं। अगर वर्ल्ड T20 की बात थोड़े साइड में रखे और T20 इंटरनेशनल की बात साइड में रखे, तो अगर हम ओवरऑल T20 मैचेस देखेंगे, बीट इंडियन प्रीमियर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, बिग बैश लीग और बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसमें सुनील नारायण फ्रॉम वेस्ट इंडीज इज द ओनली बॉलर हु हैज bowled a maiden over in super over. ओके। For I don't remember the exactly the franchise or club name, but that is what he has done, and it's a record. ओके, ये भी एक अच्छा स्टैट्स है। Yeah. Okay. Any question? यस, अभी अभी क्वेश्चंस लेते, क्वेश्चंस भेजो किसको कोई क्वेश्चंस होंगे तो। अच्छा, ये एक मैं पढ़ रहा था क्वेश्चन कि एक्चुअली ये एम एस धोनी 10 बार वर्ड यूज करता है, प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, तो एक्चुअल प्रोसेस क्या चीज़ है। No, no. Can you repeat the question?
हाँ, मैं अभी इसमें प्रोसेस प्रोसेस पढ़ रहा था। तो ये एक्चुअली वर्ड है एम एस धोनी का, क्योंकि एम एस धोनी जब भी कोई मैच जीतते हैं या फिर हारते हैं, तो वो जब पोस्ट मैच में कहते हैं तो वो हर बार एक प्रोसेस की बात करते हैं। तो एक्चुअली ये प्रोसेस क्या चीज़ है? Okay, so it's difficult to challenge MS Dhoni's thought process to speak on the process. But what I feel as a cricket statistician, why he uses the word process is because if you look at uh, the objective for any team is to win the match. करेक्ट। तो अगर हम उसकी बात करेंगे प्रोसेस की, तो प्रोसेस ये होता है कि आप हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर ऑफ द फील्ड, मतलब आप एक आपका फिटनेस लेवल है या आपका एक जो मेंटल स्ट्रेंथ है। ओके, बहुत T20 तो हाई प्रेशर मैचेस होते हैं। बिल्कुल। आप कोई भी फ्रेंचाइजी क्लब ले लो, आ, या इंटरनेशनल लेवल पे ले लो या जो भी है। तो वो जो होता है वो एक मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस, ये एक प्रोसेस का पार्ट है। एट द बिल्कुल। सेम टाइम कैप्टन, कोच, टीम मैनेजमेंट, ये लोग दे शुड कम अप विथ सम स्टडी अबाउट देयर अपोनेंट्स एंड प्लेयर। बेस्ड ऑन दैट दे शुड डिजाइन अ स्ट्रेटेजी। करेक्ट। ठीक है, तो अगर आप वर्ल्ड T20 का फाइनल खेलने जा रहे हो तो डेफिनेटली कोई भी कैप्टन, apart from his physical fitness preparation and mental fitness preparation, he will analyze opponent's strength, weakness. ओके, अपोनेंट के जो की प्लेयर्स है उनका भी स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस करके ही वो जाएंगे। तो ये भी एक प्रोसेस का पार्ट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो हो गया सारा प्रिपरेशन वेज। जब आप एक्चुअल 20 ओवर्स खेलते हो, 20 ओवर्स अगर आप बैटिंग कर रहे हो एंड इफ यू गेट फुल चांस टू प्ले 20 ओवर्स, एंड व्हेन यू आर फील्डिंग एंड इफ यू गेट टू प्ले अगेन फुल 20 ओवर्स, तो बेसिकली ये जो 40 ओवर्स का जो एग्जीक्यूशन है, तो दैट एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोसेस। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, व्हेन यू डू योर ऑफ फील्ड प्रिपरेशन, वो होता है करेक्ट। प्लान आपका कि हम ये करना है, हमको वो करना है, दैट इज योर बिल्कुल। प्लान। बट व्हेन यू गो ऑन टू द फील्ड, दैट बिकम्स योर एक्चुअल। बिल्कुल। तो वो एक्चुअल में क्या होता है कि आपका बहुत सारा कभी कभी गैप आ जाता है। कभी गैप पॉजिटिव आता है, कभी नेगेटिव आता है। नेगेटिव आता है तो आपको पता है कि उसमें वो इट रिजल्ट्स इन लॉस। बट पॉजिटिव गैप ये भी आ सकता है कि अगर आपका आप सोच रहे हो कि आपका टेलेंडर है कोई नंबर 7 या नंबर 8 बैट्समैन, और वो जाके अगर 40-50 रन भी ठोक दे, तो ये पॉजिटिव गैप है। आप यू नेवर प्लान फॉर इट, राइट? करेक्ट। एज ए कैप्टन और एज ए कोच यू नेवर प्लान फॉर इट। बट अगर वो जाके भी 30 या 40 रन ठोक देता है, तो वो टीम के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल है। तो बेसिकली बिल्कुल। MS धोनी की बात करें तो प्रोसेस, व्हाट ही मीन्स दैट फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, SWOT एनालिसिस ऑफ योर अपोनेंट, and you should know your strength and your weakness as well, and करेक्ट। finally the on field execution। करेक्ट। और तो ये मेरे कितना ख्याल से तो डिफिकल्ट रहा होगा 2007 में जो सेटबैक मिला था बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो उसके बाद टीम वापस से रीबिल्ड करना, और 2007 के वर्ल्ड कप में उसमें इंडिया के लोगों को या फिर टीम को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हम वर्ल्ड कप जीत के आएंगे। ये बात जरूर है, लेकिन कितना नहीं डिफिकल्ट नहीं, रहा होगा दो वो माइंडसेट से बाहर आके? मैं अगर 2007 के ODI वर्ल्ड कप की बात करूंगा ना अजिंक्य, तो आई विल बी ऑनेस्ट, एंड देयर इज नो स्टार्ट्स एज वेल। देयर वाज नो टीम एट ऑल। ओके, व्हेन आई से नो टीम, इट मींस team was disaggregated. Okay, हम्म। because of coach Greg Chappell, where he was experimenting every now and then. He sent Irfan Pathan to top order batting. Okay, करेक्ट। opening partnership, सौरव गांगुली को निकल दिया बहुत सारा, and he was like a I would say सर्कस रिंग मास्टर। तो वो स्ट्रैटेजी या वो अप्रोच नहीं चलता है। टीम मैनेजमेंट की अगर आप बात करोगे या टीम एटमॉस्फेयर की बात करोगे, दैट हैज टू बी वेरी हेल्दी एटमॉस्फेयर, करेक्ट। एंड यू कैन नॉट क्रिटिसाइज कंटिन्यूसली somebody. You should be giving positive feedback, constructive करेक्ट। feedback to a player who is failing.
तो ये Correct. 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप के पहले नहीं हुआ था, ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप भी नहीं हुआ, एंड इसकी वजह से बहुत बुरी तरह से हम हार गए। उसके बिल्कुल। बाद में जब 2007 T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही थी तो लालचंद राजपूत वाज आवर मैनेजर, देयर वाज नो कोच। बिल्कुल करेक्ट। हमारे पास में कोच नहीं था। द टीम वेंट विथ ओनली मैनेजर नेम्ड एज लालचंद राजपूत, करेक्ट। और वो एक डोमेस्टिक लेवल के प्लेयर थे। और बिल्कुल मुंबई से थे। हाँ, और उनका जिस तरह से एक फीडबैक था, तो अगर आप उनके उस टाइम के इंटरव्यू भी देख लोगे तो उन्होंने यही बोला था कि आई गेव फ्रीडम टू MS धोनी एज वेल एज द टीम टू कम अप विद देयर फुल स्ट्रेंथ। उनको जो लगता है एग्जीक्यूशन में वो अगर वो कर सकते हैं तो देन इट इज बेटर, इंस्टेड ऑफ ही डिक्टेटिंग एंड ही गाइडिंग व्हाट इज टू बी डन। करेक्ट। तो वो एक बहुत बड़ी चीज थी। बिल्कुल। और कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी इंडिया को, लेकिन जब इंडिया वो वर्ल्ड कप जीता था साउथ अफ्रीका में, तो इंडिया में तो ऑब्वियसली लोग पागल थे उस दिन। लेकिन जब टीम वहां से मुंबई आई थी, तो जिस हिसाब से MS धोनी और वीरेंद्र सहवाग जब तब की बातें करते वो बता रहे थे कि मुंबई में पैर रखने को भी जगह नहीं थी, इतना क्राउड आ गया था। और वानखेड़े तक जब मतलब वहां से शायद से एयरपोर्ट से जाने को 1.5 से 2 घंटा लगता है, तब शायद से उनको 7 से 8 घंटे लग गए थे।